The numbers which have unit digit as 0, 2, 4, 6 and 8 are divisible by 2. It means all the even numbers, all the all the even numbers are divisible by 2. Okay? So you can learn either this or this. Both are the same things. Now have a look on the divisibility by 3. What we will do is that we will add all the digits and we will see whether the number is divisible by 3 or not. Okay, let's take an example. I'll give you two examples. Suppose this number is given 3, 9, 5, 8 and 3. If we will add all the digits, what we will get? You can do this, check yourself also, the addition part. This is 28, okay, 9 and 3 12, 12 and 8 20, 20 and 5 25 and 3 28. Whether 28 is divisible by 3? No, 28 is not divisible by 3, so this number is also not divisible by 3. Okay, let's have one more example. Let's check one more example. Suppose a number is given as 6, 4, 7, 2, 5. So first of all add the digits of these numbers. What you will get? You will get 24. Okay, check whether 24 is divisible by 2 or not. Yes, 3 or not. Yes, 24 is divisible by 3, then this number is divisible by 3. I hope you have got the idea. Okay, so this is how you can do. लेकिन एक प्रॉब्लम आपको और हो सकती है कि आपको टेबल तो सिर्फ याद होगा 30 तक, 3 3 30. तो अगर मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यू विल ऐड ऑल द नंबर्स, all the digits of this number. What you will get? 63. How you will check whether 63 is divisible by 3 or not? Don't get bothered, just add the digits of this sum also. What you will get? 9. So whether 9 is divisible by 3 or not? Yes, 9 is divisible by 3, which means this is also divisible by 3, and if this is divisible by 3, 63 is divisible by 3, this big number is also divisible by 3. This is how you will check. Okay, now have a look on divisibility by 4. Divisibility by 4. Okay, so suppose a number is given as 6, 1, 3, 9, 4. You will check only ones place and tens place whether it is divisible by 4 or not. Okay, take one more example. 9, 6, 8, 5, 2. ठीक है, तो हम लोग वंस और टेंस प्लेस को चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल है 4 से या नहीं. तो 94 को आप चेक कर लीजिए जल्दी से डिवाइड करके. You will get a remainder of 2, which means this 94 is divisible, not divisible by 4. This also means that this whole number is also not divisible by 4. वंस और टेंथ प्लेस में जो नंबर आ रहा है वो डिविजिबल नहीं है 4 से, क्योंकि हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है. इसका मतलब कि ये बड़ा वाला भी नंबर डिविजिबल नहीं है. एक दूसरा एग्जांपल भी चेक कर लीजिए. इसके वंस और टेंथ प्लेस पे क्या है? 52. चेक कर लीजिए आप. What you will get?
you will get the remainder as 0. Don't see this, okay, because it is of no use. So you only have to check whether the remainder is 0 or not. The remainder over here is 0, which means that this number is also divisible by 4. Okay, now the most easy one, the easiest part, by 5. ओके, ये सबसे छोटा और सबसे इजी है. अगर किसी नंबर के लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे 0 और 5 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है, और अगर नहीं है तो वो नॉट डिविजिबल बाय 5 है. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, चेक कर लीजिए. इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है. इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है. इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है. इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है. इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है. इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं है. तो दिस इज हाउ यू विल चेक फॉर 5. ओके, so 5 is the most easiest one. ठीक है, अब आप इस वीडियो को पॉज करेंगे और मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं. ठीक है, इन सबको आप चेक करेंगे. इसको आप किससे किससे चेक करेंगे, अभी तक मैंने जितना भी बताया है आपको सबकी डिविजिबिलिटी 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 5 से. और उसके बाद फिर आप वीडियो को रिज्यूम करेंगे और आगे का चेक करेंगे. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप. ठीक है, आई होप कि आपने अपना होमवर्क मतलब जो अभी दिया था मैंने काम, वो कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, और आपके पास रिजल्ट भी आ गया होगा. अब हम लोग आगे का चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6. ये भी इजी है. अगर कोई नंबर इफ, इसीलिए मैंने आपको वो करने के लिए दिया था कि आप उसको कर लीजिए, जो नंबर्स हैं उनको चेक कर लीजिए. क्यों, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि इफ अ नंबर इज divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. Okay, let's take few examples. 18, 42, 21 and 25. ओके, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 2 से कौन कौन सा डिविजिबल है. तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2. whether it is divisible by 2, yes, 42 is also divisible by 2. whether 21 and 25 is divisible by 2, no, this is not divisible by 2. तो हम लोग इसको डायरेक्ट पहले ही बोल देंगे कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा और इसको काट देंगे. ठीक है, अब आप डिविजिबिलिटी बाय 18 चेक करिए. तो क्या 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ 3 के टेबल में 18 आता है. तो इसका मतलब 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा. 42 के लिए चेक कर लीजिए, दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6. 6 क्या 60 इसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, हाँ, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा और ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी check the divisibility by 6. Okay, in your book it is given a number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit and the number formed by other digit is either 0 or multiple of 7. ठीक है,
सपोज एक नंबर आपके पास दिया हुआ है 6804, तो ये कहता है कि वंस प्लेस का जो ट्वाइस, वंस प्लेस का ट्वाइस क्या होगा, 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4, और बाकी सबका डिफरेंस मतलब ये 680। अगर ये डिविजिबल है, मतलब अगर इसका जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा, मतलब ये 8 माइनस कर देंगे 680 में तो 672 आएगा। अगर ये डिविजिबल है 7 से, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। चेक कर लेते हैं हम लोग। 63 4 6 7 6 42. The remainder is 0, which means it is divisible by 7. This means that this whole number 6804 is divisible by 7. Okay. Now let's quickly have one more example. Let's see one more example. 137. Okay. So unit digit is 7. So what we will do? We will multiply the unit digit by 2 and we will subtract by 13. Okay. So what we will get here? 13 minus 14, which is minus 1. This means it is not divisible by 7. So this whole number 137 is also not divisible by 7. Hope it's clear. Okay. Now let's have a check of whether what is the rule of divisibility by 8. Okay. 4 का ही एक्सटेंशन है 8 वाला, ठीक है। 8 वाला रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है 79152, तो इसका अगर वंस, टेंस और 100 तीनों प्लेस अगर डिविजिबल होगा 8 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। लेकिन अभी आप इस वीडियो को पॉज करिए और चेक करिए कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको चेक किया होगा, 4 से डिविजिबिलिटी, इन दोनों को 52 को 4 से डिवाइड करके, और आपको रिमाइंडर 0 मिला होगा। इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। पता चल गया होगा कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन अब हम लोग 8 से चेक कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, okay, which means this number is divisible by 8. okay, 100 place, 1's place और 100 place, 10's place और 1's place डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल है 8 से, ठीक है। तो 4 और 8 वाला सिमिलर ही है लगभग। अब हम लोग 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 वाला 3 के सिमिलर है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 65403, तो इन डिजिट्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसका ऐड करने पे क्या आएगा? 18 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से, ठीक है। तो 3 के सिमिलर ही है, ठीक है। और 10, अब डिविजिबिलिटी बाय 10 हम लोग चेक करते हैं। ये भी 5 की तरह बिल्कुल इजी है। अगर नंबर के लास्ट में 0 आ गया तो वो नंबर डिविजिबल है 10 से, और अगर नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। कुछ नंबर्स, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 160, 1880, 1889, 52543, ओके। तो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल है। इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। और इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू। अब 11 के लिए चेक कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स have
a check of the divisibility by 11. The divisibility by 11 says a number is divisible by 11 if the differences of the sum of its digits in odd places and sum of its digit in even places is either 0 or multiple of 11. Okay, so what does this say? ये थोड़ा मुश्किल लगता होगा आपको देखने में, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि इसके यूनिट प्लेसेस इसके ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? 1, 3 एंड 5, ये इसके यूनिट प्लेसेस हैं, ठीक है। और बाकी बचे हुए ये ऑड प्लेसेस थे और बाकी बचे हुए इवन प्लेसेस थे, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ये ऑड प्लेसेस हैं और ये इवन प्लेसेस हैं, ठीक है। तो आप ऑड प्लेसेस को पहले जोड़ लीजिए, ठीक है, और इवन प्लेसेस को एक अलग जगह जोड़ लीजिए, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट हियर 24 एंड व्हाट यू विल गेट ओवर हियर 2। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। When you will subtract 24 minus 2, what you will get 22. Whether 22 is divisible by 2 or not? Yes, it is divisible by 22. So this whole number is also divisible by 11. Okay, 22 is divisible by 11. So this whole number is also divisible by 11. ठीक है? Let's have one more example. 8, 6, 3, 4, 2, 3. Okay, so what are the odd places? These are the odd places. Let's add them. Okay, what are the even places? Even places are 8, 3 and 2. What you will get? 13, and here also you will get 13. Okay, so 13, when you will subtract 13 from 13, then what you will get? 0. So it's not required that the number, the subtraction number, but that we will get is a multiple of 11 only. It should be, it can be 0 also. So if it is 0, this whole number is divisible by 11. Okay, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन वाला नंबर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि 11 का मल्टीपल भी हो, 0 भी हो सकता है। और अगर 0 है तो इसका मतलब ये नंबर 11 डिविजिबल बाय, ये नंबर जो है, ये पूरा नंबर ये डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। तो अब आप लोग ये एक्सरसाइज 2B कंप्लीट कर लीजिएगा और अगली जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग आप प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ और एलसीएम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।